today video, it is the fourth part of average topic. Okay, today I will discuss with you some problems of different types. Okay, now the first, an officer's pension on retirement from service is equals to half of the average salary during the last 36 month of service. आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है. एक ऑफिसर है, उसका पेंशन डिसाइड होता है आफ्टर रिटायरमेंट. वो किसके इक्वल है वो आपको बता रहा है. हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द लास्ट 36 मंथ ऑफ हिज सर्विस. ठीक है. नाउ द एज पर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ पेंशन आर इक्वल्स टू लास्ट 36 months average salary divided by 2, because half of the last 36 months average salary, therefore divided by 2. Clear? As per the question, his salary on 30th 994 is rupees 3800 per month. सैलरी कब उसको मिल रही है? 30th 994 he is taking salary rupees 3800 per month. Clear? Now with the annual increment of rupees 400, और उसको हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होता है जो कि फर्स्ट टाइम 1994 को है. इंक्रीमेंट every year of first 10 1994 are equals to rupees 400. Now the first increment, now the second increment, first 10 1995 again rupees 400, and the third increment is first 10 1996 rupees 400 as per the given data. Clear? If he retired on 1st January 1997 में वो क्या हो जाना है? रिटायर हो जाना है. दैट मीन्स डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 1st January 1997. क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? लास्ट 36 मंथ एवरेज सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट लास्ट 36 मंथ टोटल सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो हमको पहले तो लास्ट 3 इयर्स कैलकुलेट करना होगा. मतलब ही इज वर्किंग इन 31st of December 1996. क्लियर? नाउ द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 1st January 1996. एक साल हो गया. सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 1st January 1995 to 31st of December 1995, and 1st January 94 to 31st of December 1994. ये पीरियड हो गया. बिकॉज ऑल द पीरियड विद इन ए ईयर से 12 months, therefore 36 months. क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 1st January 1994 में उसकी सैलरी कितनी थी. नाउ द सैलरी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st January 1994 अप टू 30th of 9 1994 is 3800 per month. Now salary of 1st January 1994 to 30th of 9 94 are equals to how many months? 1 to 9 से 9 months. 3800 into 9. क्लियर? कैलकुलेट कर लीजिए. 3800 into 9 कर लीजिए. 3800 into 9 से 34,200 रुपीज. क्लियर? अब चेंज क्या होगा? नाउ द नेक्स्ट सैलरी ऑन 1st 10 1995. 1995 में देखिए उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है? सॉरी 1994
1994 में इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 400. Therefore, the new salary after increment, the next 12 months period, 30th of 995. This is for 12 months. Clear? Now the new salary 3800 plus 400. Now the increment will be included for the first increment allowed by the employer to his employee on 1st 10 1994 400. Clear? Now 3800 plus 400. Now the salary is becomes 4200 for the period of 12 months. Count कर लीजिए 1st 10 94 to 30th of 995 12 months हो जाएगा. Into कर दीजिए into 12. Now 50,400. Clear? Now the next, the salary of 1st 10 95 to 30th of 996. Again for the period of 12 months. Clear? Now the increment of 1st 10 96, sorry 1st 10 95 400. Now the salary 4200 plus 400 कर दीजिए same as for 4600 into 12. Clear? 4600 into 12. Now the result is becomes 55,200. अब देखते जाइए. First is for 9 months, second 12 months, again 12 months. Now salary of first 10 96 to 31st of December 96. क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो काम कब तक किया होगा, क्योंकि 1 जनवरी 1997 को रिटायर हो गया. दैट मींस ही इज वर्किंग लास्ट डे ऑफ हिज सर्विसेज 31st of December 1996. Now the period becomes 1st 10 96 to 31st December, 3 months. Clear? First of all, salary 4600. Now the increment of first 10 96 is 400. Now the new salary is becomes 5,000 for 3 months. Clear? Now this is 15,000. The sum of these four amount is called total salary of last 36 months. Clear? पूरे 36 महीने का जो टोटल सैलरी है वो कैलकुलेट कर लीजिए. 34,200 फर्स्ट प्लस 50,400 प्लस 55,200 प्लस 15,000. Now 1,54,800. Clear? Now to find out the amount of pension as per the question, last 36 month average salary. Average कैलकुलेट करना आप लोगों को मालूम है. Average are equals to total divided by number. Salary कैलकुलेट करनी है. Average salary are equals to total salary और this is called period. कितने months का है. ठीक, हमारे पास टोटल सैलरी कितनी आई है 1,58,400. This is 1,54,800 divided by 36 month. Total salary of last 36 month. Clear? Divided by 36. Now 4,300. Clear? This value are put in this equation. Therefore 4,300 divided by 2 are equals to divided by 2 2,150 rupees. This is the amount of pension fixed by the employer to his employee. Clear? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं. द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स. शुरू के 10 स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है कि उनका एवरेज एज 14.1 ईयर है. द एवरेज एज ऑफ अनदर 12 स्टूडेंट्स. उसके बाद के जो 12 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज एज 9.5 ईयर्स है. द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स. रिमेनिंग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि टोटल आपको मालूम है 25 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इज 13.5. वेयर अ न्यू बॉय इज एडमिटेड. एक नया बच्चा उसमें आ जाता है.
the average age of the class is reduced by 0.1 year. ठीक है, find the age of newcomer. चलिए आज क्वेश्चंस को देखते हैं. मैं आपको टेबल से बताता हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको अकॉर्डिंग टू टेबल क्वेश्चन ज्यादा इजी लगता होगा. हम लोग डिस्कशन करते हैं. नाउ अगेन 3 columns. This is total, average and number. As per the question, total number of students in a class is 25. ये क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या था आप लोगों के लिए कि फर्स्ट 10 का जो एवरेज है 14.1. फर्स्ट 10 द एवरेज एज ऑफ 14.1. क्लियर. नेक्स्ट 12. ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को. नेक्स्ट जो 12 है उनका एवरेज एज है 9.5 इयर्स. 12 का 9.5 इयर्स. आगे बताता है द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स. ये जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है इनका जो एवरेज एज है वो है 13.5 इयर्स. 13.5 इयर्स. क्लियर, यहां तक एकदम क्लियर है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. When a new boy is admitted, एक नया बॉय और आ जाता है. एक नया बॉय आ जाएगा तो क्या होगा? एक नया बॉय आ गया. ठीक. नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 26. एक बच्चा बढ़ जाएगा मतलब 26 हो जाएगा. ठीक है. आगे बता रहा है आपको द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 0.1 ईयर. ओके, तो एवरेज एज यहां जो भी होगा उससे माइनस 0.1 ईयर आपका कम हो जाता है एवरेज एज. तो आपको क्या क्या डिफाइन करना है एज पर द क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिस वैल्यू, दैट मींस द रिमेनिंग स्टूडेंट्स द एवरेज एज इज 13.5. ये फर्स्ट कैलकुलेट करना है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 25. तो 25 में से 22 माइनस कर दीजिए. माइनस कर देंगे 25 माइनस 22. नाउ दिस इज फॉर 3 स्टूडेंट्स. क्लियर है, समझ में आ रहा है. अब to first of all calculate total age of 10 students. 141, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 10 दिया हुआ है, टोटल एज नहीं मालूम है आपको, एवरेज एज मालूम है 14.1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर इक्वल्स टू 14.1 into 10, say 141. Clear? That is, this is the total age of next 12 student. 12 into 9.5. Now the total age of 140. And remaining student 3. 25 में से 22 माइनस कर देना है आपको. Now the total age of 3 students is 3 into 13.5. Now 40.5. Next step ये कैलकुलेट करना है आपको. Total age of 25 students. Clear? So sum of all the ages. Therefore 141 plus 114 plus 40.5. Now the total age 295.5. Next step. This is average age of 25 students. Clear? अब आपके पास क्या है? फिर से एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए आप. एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर. अगर क्लियर नहीं है तो आपके पास नंबर आपको मालूम है, लिख दीजिए 25. एवरेज आपको नहीं मालूम है, एवरेज रहने दीजिए. टोटल एज मालूम है 295.50. ठीक है. डिवाइडेड बाय 25 कर दीजिए. डिवाइडेड बाय 25 11.82. दिस इज द एवरेज 11.82. क्लियर, समझ में आ रहा है. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन ए क्लास, देयरफॉर द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 0.1 इयर्स. ठीक है, मतलब आपका एवरेज एज कितना है? 11.82 है. एक बच्चा अगर आ जाता है तो यहाँ एवरेज एज क्या आ जाता है? दिस वन माइनस दिस वन. क्लियर? एवरेज एज रिड्यूस्ड बाय 0.1 ईयर. देयरफॉर माइनस कर दीजिए, माइनस 0.1 से 11.7.
यहां आ जाएगा अब आपका एवरेज एज 11.72 एज पर द क्वेश्चन। क्लियर? अब आपके पास फिर से नंबर मालूम है, आपको एवरेज एज मालूम है, तो टोटल एज डिफाइन हो जाएगा। टोटल एज कैसे डिफाइन होगा? 26 मल्टीप्लाइड बाय 11 into 7.2 into 26. Now the result is 304.7. अब टोटल एज ऑफ 26 स्टूडेंट आपको मालूम है, टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स मालूम है, तो एक स्टूडेंट का एज डिफाइन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, 10 और ये दो जो वैल्यू दैट मींस 295.5 is subtracted from 3.04.72. Now the value is defined. ठीक है, क्या हो जाएगा? -295.5. Now the result is 9.22 year. Here the age of new student are equals to क्या हो जाएगा? टोटल एज ऑफ 26 स्टूडेंट्स माइनस टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ द रिजल्ट 304.72 minus 295.5. Now the result is becomes 9.22 years. Clear? सिंपल। आपको सिर्फ टेबल में वैल्यू पुट करना आना चाहिए और कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ओनली वन फॉर्मूला आर देयर, एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। आपको पूरा अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। इफ एनी डाउट, आई एम ऑलवेज, मैं हर दिन आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ जवान्स ऑफ ए प्लाटून वाज 24 इयर्स। एक प्लाटून है और उसमें जो जवान्स हैं उनका जो एवरेज एज है वो 24 इयर्स है। 3 न्यू जवान्स वेयर रिक्रूट, 3 नए जवान उसमें आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट होता है उनका, whose age is 27, 30 and 23 years. Clear? The average when up to 24 years and 2 months, जो नया एवरेज एज हो जाता है इंक्लूडिंग न्यू 3 जवान्स 24 years and 2 months. Find the number of जवान्स बिफोर रिक्रूटमेंट, बिना रिक्रूटमेंट के कितने जवान्स थे पहले से प्लाटून में। चलिए आइए फिर से टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जो जल्दी क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ एज पर द क्वेश्चन, 3 लाइन्स फर्स्ट, दिस इज टोटल एवरेज नंबर, टोटल एवरेज नंबर। टोटल नंबर ऑफ जवान्स इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन इन ए प्लाटून, बट एवरेज एज आर गिवन 24 years. तो टोटल है हमारे पास, टोटल जवान्स का एवरेज एज दिया हुआ है, एवरेज में लिख दीजिए 24। ठीक है, क्लियर? टोटल नंबर ऑफ जवान्स आपको मालूम नहीं है, बट 3 जवान्स आर रिक्रूट, 3 नए जवान्स को आपको शामिल करना है। 1 2 3, ऊपर का डेटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने टेबल बनाया क्योंकि टोटल नीचे लिखा है, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, जब आप खुद से बनाने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ओल्ड वैल्यूज, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल लिखे ओल्ड वैल्यूज आर देयर, मगर इसमें ओल्ड वैल्यूज नहीं है, इसमें आपको न्यू हो रहा है, तो न्यू आपको ये समझ में आ जाएगा कि टोटल यहां आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक, नाउ द एज ऑफ फर्स्ट जवान एज पर द क्वेश्चन इज 27 ईयर, 30 ईयर एंड 23 इयर्स। क्लियर? आफ्टर रिक्रूटमेंट टोटल नंबर ऑफ जवान्स कितने हो जाएंगे, ये आपको फाइंड करना है सबसे पहले। क्लियर? बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ जवान्स इन द प्लाटून इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, बट 3 न्यू कमर्स आर एडमिटेड। ठीक है, 3 नए कमर का रिक्रूटमेंट हो गया है जिनका एज आपको मालूम है, और जब ये तीनों को मिला देते हैं, नाउ द न्यू एवरेज एज ऑफ टोटल जवान्स इज एज पर क्वेश्चन 24 years and 2 months. ठीक, अब हम लोग assumption लेते हैं x, that means
number of jawans in platoon. Let the total number of jawans are be x. टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ x है +1 से x + 3. Now first of all calculate this one. The total age of x जवान, therefore 24x. मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है. अभी मैंने बार ये एवरेज का फॉर्मूला बताया है, फिर से मैं आप लोगों के सामने एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर. क्लियर? एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल. नाउ व्हिच आर देयर? नंबर आर देयर एंड एवरेज आर देयर. 24 आर इक्वल्स टू टोटल x by cross multiplication t r equals to 24x. अब as per the question, the age of x जवान plus age of one जवान plus age of another one फिर age of another one are equals to total age of x plus 3 जवान. Same this one and this one. अब both are the different thing. 24 years and 2 months. आपको क्या करना होगा? ये मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा. क्लियर? अब ये मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ओनली द मंथ्स इज डिवाइडेड बाय 2. बहुत ही सिंपल है. कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है? 12 मंथ्स आर इक्वल्स टू 1 ईयर. देयरफॉर 1 मंथ आर इक्वल्स टू 1 by 12 ईयर. देयरफॉर 2 मंथ्स आर इक्वल्स टू 1 into 2 by 12 years. Is very simple. Now this is cancelled 1 by 6. That is 24 and 1 by 6 years. Clear? Solve कर लीजिए. 24 into 6 is 24 into 6 plus 1 are equals to 145 by 6 years. Clear? Exactly. Now as per the question, total age of x jawans plus total age of new 3 jawans plus are equals to total age of x plus 3 jawans. ये हो गया equation. Total age of x jawans, it is also given or defined 24x. Clear? Plus sign. Total age of new 3 jawans 27 plus 30 plus 23. Clear? Now this is 27 plus 30 plus 23. Now it is 80. Are equals to this one x plus 3 into 145 by 6. ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. ठीक? x plus 3 into 145 by 6. अब इसको सॉल्व करना है. 24x plus 80 are equals to 145x upon 6 plus 145 into 3 by 6. 3 to the 6. Now 24x plus 80 are equals to 145x upon 6 plus 145 divided by 2. ट्रांसफर कर दीजिए. 145x upon 6 minus 24x. इसको ट्रांसफर कर दिया हमने इधर और इसको ट्रांसफर कर दीजिए. r equals to 80 minus 145 by 2. एलसीएम लीजिए. 6 145x minus 144x r equals to now new LCM 2 160 minus 140. क्लियर? चलिए आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं. Now according to question, according to solution, 145 x upon 6 r equals to 160 minus 145 equals to 50 divided by 2. बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2x r equals to 6 into 15. Now x r equals to 6 into 15 divided by 2. 2 3 the 6. Now 45. What is the x? X say called
number of jawans in a platoon. Clear? ये आपके लिए क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि स्कोर्ड रन्स अप टू 16 innings अ सर्टेन स्पीड. एक रवि है, क्रिकेट प्लेयर है, वो क्या करता है 16 इनिंग्स में एक सर्टेन स्पीड से रन बनाता है, मतलब एक एवरेज स्पीड से रन बनाता है. दैट मींस द एवरेज रन्स आर नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन. ठीक है. इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर्ड 85 रन्स. मगर जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें 85 रन वो क्या करता है, स्कोर करता है. क्लियर? उसके बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट लिखा है, ड्यू टू विच हिज एवरेज रन्स पर इनिंग इंक्रीज्ड बाय 3 रन्स. ये 85 रन बनाने से क्या होता है, उसकी टोटल इनिंग का जो एवरेज है वो 3 रन से बढ़ जाता है. व्हाट वाज हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग. 17th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होता है. ठीक है. इसको भी हम लोग टेबल के थ्रू देखते हैं, जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा. क्लियर? एज पर द क्वेश्चन, अगेन 3 आइटम्स, टोटल एवरेज, नंबर एवरेज टोटल. नंबर से टोटल इनिंग्स, एवरेज रन, टोटल रन. ओके. नाउ रवि स्कोर्ड रन्स अप टू 16 इनिंग्स एट सर्टेन स्पीड. 16 इनिंग्स उसने प्ले किया. हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, नहीं दिया हुआ है. लेट द एवरेज run be x. Clear? Now the total run of the 16 innings is 16x. As per the formula of average, हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इनिंग्स में उसने कितना रन स्कोर किया, 85. नेक्स्ट इनिंग 85 रन्स. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग, टोटल 17 इनिंग्स में उसका टोटल रन कितना हो गया, 16x प्लस 85. ठीक है. क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रहा है ड्यू टू विच हिज एवरेज रन पर इनिंग इंक्रीज्ड बाय 3 रन्स. जो उसका एवरेज रन है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 3 रन से इंक्रीज हो जाता है. तो एवरेज रन कितना है, एवरेज कितना है, x प्लस 3. जो भी उसका एवरेज रन था उससे कितना इंक्रीज हो जाता है, 3 इंक्रीज हो जाता है. तो x प्लस 3 हो गया. टोटल रन स्कोर कर सकते हो 17x प्लस 3. क्लियर? एज पर द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रन बाय 16 innings, this one total run scored in last inning and the total run of 17 innings. Total run in 16 innings plus total run in last inning are equals to total runs 17 innings. ठीक, पुट कर दीजिए. 16 innings का कितना है रन आपके पास, 16x प्लस साइन लगा दीजिए. लास्ट इनिंग कितना रन स्कोर किया उसने, 85. क्लियर? टोटल 17 इनिंग्स में कितने रन उसने स्कोर किए, 17 विद इन ब्रैकेट x प्लस 3. अब इसको आपको सॉल्व करना है. इट इज वेरी सिंपल. 16x प्लस 85 आर इक्वल्स टू 17x प्लस 85 इंटू 17 into 3. 17 into 3. Now this is the result 51. Again 17x minus 16x are equals to 85 minus 51. Now x are equals to 85 minus 51. Now 34. अब x की वैल्यू, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है ये आपको देखना है. क्वेश्चन में आपसे डिफाइन करने के लिए बोलता है व्हाट वाज हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग. 17th इनिंग के बाद आपका एवरेज कितना है दोस्तों, आफ्टर 17th इनिंग द एवरेज रन इज x प्लस 3. क्लियर? आफ्टर 17th इनिंग
एवरेज रन आर इक्वल्स टू x 70 x plus 3. Now the value of x is also defined 34. Now 34 plus 3 are equals to 37. Clear? It is a very simple question. आपको ये मेथड एडॉप्ट करना है, आपको ये मेथड एडॉप्ट करना है। आपने जो जो किया है उसको आपको रिटन में लिखना है। अगर ये बनाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 100% मेरी तरफ से श्योरिटी है, आपसे गलती नहीं होगी, मगर इस टेबल के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे वीडियो से एवरेज रन इन 10 इनिंग्स प्लेड बाय अमर। एक अमर है, वो 10 इनिंग्स में एवरेज रन स्कोर कर, फिर से पढ़ता हूं। एवरेज रन इन 10 इनिंग्स प्लेड बाय अमर इज 54। 10 इनिंग्स में उसने कितना स्कोर किया? एवरेज 54 रन, मतलब हर इनिंग में उसने 54 रन बनाए। ठीक है, इंक्लूडिंग इन 128 रन इन लास्ट इनिंग। और लास्ट इनिंग में उसने कितना स्कोर किया था? 128 रन उसने स्कोर किया था। इफ द रन्स इन द लास्ट इनिंग वेयर 0, अगर उसके लास्ट इनिंग का रन क्या होता? 0 होता, जिसमें वो कितना स्कोर किया है? 128। व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज नंबर ऑफ रन्स? तो उसका एवरेज रन क्या होगा? ठीक है, चलिए आइए अगेन फिर से हम लोग टेबल से समझते हैं। नाउ टेबल इज हियर। सबसे पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ इनिंग्स? 10. नाउ द स्कोर एवरेज रन इन 10 इनिंग्स से टोटल रन स्कोर बाय 10 इनिंग्स। ठीक, अब मैं इसको आपको बताता हूं कि आप एग्जाम में बनाते हैं तो किस तरीके से आप इसको बनाते हैं। ठीक है, ये टेबल आप बनाए। आपने सबसे पहले एवरेज इनिंग्स नंबर ऑफ इनिंग्स नोट किया, एवरेज रन नोट किया। ठीक है, आप सेम लिखिए अमर स्कोर बाय 10 इनिंग्स are equals to अमर स्कोर एवरेज रन इन 10 इनिंग्स are equals to 50। ठीक है, उसके बाद आपने क्या निकाला? टोटल रन निकाला। यहां लिख लीजिए टोटल रन्स स्कोर बाय अमर are equals to 54 into 10 are equals to 5। ये आपने नोट कर लिया एज पर द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कि लास्ट इनिंग में उसने 128 रन स्कोर किया है। दिस इनिंग्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस 128 लास्ट इनिंग। दिस इज लास्ट इनिंग, दिस इज द लास्ट इनिंग। अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि इस इनिंग में अगर वो 0 रन बनाया होता तो 0 पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 128 रन उसने स्कोर किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ 9 इनिंग आर रिमेनिंग एंड द 540 minus 128 दिस इज 412। अगर वो लास्ट इनिंग में कितना स्कोर किया होता? 0 रन स्कोर किया होता। अगेन द टोटल नंबर ऑफ इनिंग played by the Amar 10 and the total run scored by the Amar in last 10 innings 412. To find out this value as per the question, average run okay of last 10 innings average। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इस स्टेप पे पहुंच गए, यहां तक आपने नोट कर लिया। यहां लिख लीजिए लास्ट इनिंग रन are equals to 128। ठीक है, now total runs after last inning say 10 minus 1 are equals to this one is 412। ठीक है, अब क्या किया आपने? एक नया इनिंग को इंक्लूड किया आपने। यहां लिख लीजिए एड न्यू इनिंग now the runs be 0 or say nil। say 412 what is this? total runs after 10 innings
आफ्टर 10 मिनट्स। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज रन फाइंड करना है, दैट मींस टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स। क्लियर? तो टोटल रन कितना है? 412। आपका भी टोटल रन 412 है। 412 टोटल इनिंग्स 10, टोटल इनिंग्स 10। मगर यहां देखिए आप क्लियर समझ में आ रहा है। नाउ द एवरेज रन इज 41.12। मैं आप लोगों से ये हमेशा बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो नेचुरली कि आपको कोई डाउट आएगा, और वो डाउट आप जरूर भेजें मुझे कमेंट बॉक्स में। और इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल से सब्सक्राइबर एंड द न्यू व्यूअर्स, इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. Okay, and thank you very much for watching today video. Okay, thank you very much.